Well, the channel that broke the truth about Arvind Kejriwal's opulent Sheesh Mahal back in April 2023 is back with the biggest and the most explosive news break of this election season. This is Operation Black Dollar, a story that has rattled the Aam Aadmi Party so much that it has resorted to violent physical attacks on our crew. Times Now has taken the legal recourse and we will fight till the very end. Our questions will not stop. Our pursuit for truth will not stop. Now, let's tell you exactly the details of this Operation Black Dollar, as Times Now has access to super loaded ED dossier that reveals how Enforcement Directorate told the Ministry of Home Affairs in clear words that the Aam Aadmi Party violated Indian laws and the FCRA norms to get foreign funding. Let's break it down bit by bit. ED has told the MHA that the Aam Aadmi Party got foreign funds worth 7.8 crores between 2014 and 2022. The party apparently violated FCRA norms to get these foreign funds, and these foreign funds came from donors sitting in Canada, in the US, Australia, New Zealand, Saudi, Kuwait, Oman, and other countries. ED, meanwhile, has also conveyed to the MHA that the Aam Aadmi Party concealed the identity of the foreign donors to escape scrutiny by the Indian investigators. Foreign donors directly deposited money in the Aam Aadmi Party's bank accounts. What's even more shocking is that ED has now found a mail trail that reveals how the Aam Aadmi Party's Durgesh Pathak reportedly tried to siphon off foreign funds for his personal benefits. Now, ED, which has given details of the addresses, the email IDs and the number of the foreign donors, it has highlighted how the same passport, the same credit card, the same number that was used by many people to make donations to the Aam Aadmi Party. As per the ED, at least 155 donors used 55 passports to make 404 transactions worth over 1.02 crores. ED has also highlighted how 71 donors sitting in foreign soil used 21 mobile numbers to make 256 transactions. ED also has highlighted that 75 foreign donors used to take 15 credit cards to make 148 transactions into the bank accounts of the Aam Aadmi Party directly. Let's break that down, as you can see graphically, for you to look at these passport numbers as well. Different donors that has used one passport to send money to the Aam Aadmi Party. This passport number, which ends with 24, there are 13 different people using the same passport to send funds to the Aam Aadmi Party. How is that even possible? Let's also talk about the Gmail ID, starting with the alphabets EM. Now, apparently, these were used by at least 14 people to make at least 40 transactions worth over, when it comes to 17,48,535. Now, when it comes to the Gmail ID that starts with NZ, was used by 35 people to make 40 different transactions, and the Gmail ID with starting SH, as you can see, that same ID was used by 13 different people to make 28 transactions. The details, meanwhile, has rattled the Aam Aadmi Party. They have now resorted to the politics of blame game. As per the Aam Aadmi Party, the foreign funding revelation by ED is a conspiracy by the BJP. ये जो मामला है, ये बहुत पुराना मामला है. इस मामले में पहले ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को पार्टी ने एक एक रुपया का डिटेल पहले ही सौंप दिया था. 2015 में इवन हाई कोर्ट में एमएचए ने एफिडेविट में सबमिट किया था और कहा था कि कोई गलत नहीं हुआ है. ये बात बहुत पुरानी है, ये बात खत्म हो चुकी है. प्रश्न ये उठता है कि आज ये फिर से क्यों उठा रहे हैं. आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कारगुजारी, तो जब भी ये चुनाव हारने की स्थिति में आते हैं, ये इस तरीके के कारगुजारी, इस तरीके के कारनामे, षड्यंत्र, गंदी राजनीति करते हैं. आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है. ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं. ये कई साल पुराना मैटर है, जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को, इलेक्शन कमीशन को
पहले ही जवाब दे चुकी है। Now, from concealing to misdeclaration to manipulation of identities and nationalities of foreign donors, as well as several other facts relating to foreign donations, ED has accused the Aam Aadmi Party of blatant violation of the FCRA norms. Now, in its investigation, the ED has also found several instances of irregularities in collecting foreign funds by the Aam Aadmi Party and its leaders. ED has mentioned that Aam Aadmi Party leader and MLA Durgesh Pathak allegedly siphoned off funds collected during fundraising event in Canada in 2016 for his personal benefits. ED substantiated those allegations by attaching the contents of the emails exchanged between the Aam Aadmi Party volunteers and functionaries. The email added by ED in its dossier reveals that Durgesh Pathak reportedly asked for one Aniket Saxena, who is a coordinator of Aam Aadmi Party's overseas wing, to transfer over $29,000 directly to him and Kapil Bhardwaj through one Bhagwantur. Now, Durgesh Pathak reportedly said कि चिंता मत करो, हम जेल नहीं जाएंगे, जाना होगा तो पंकज गुप्ता जाएगा. Watch how the BJP is now attacking the Aam Aadmi Party and raising questions over who gave these funds to the party, that is the Aam Aadmi Party. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी झूठ के बुनियाद पर खड़ी है और इनको वोट के खातिर देश से भी कॉम्प्रोमाइज करने में देर नहीं लगती है। ये पहला आरोप नहीं है, इसके पहले भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट इनको मिला, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। ये आपने देखा पंजाब के चुनाव में भी आरोप लगे। ये आरोप का जवाब नहीं देते हैं, ये उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, ये इश्यूज को डिफ्लेट करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है कि झूठ के बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है और ये बेनकाब हो चुकी है। ये इनका दोहरा चरित्र, इनका दोगला चरित्र बेनकाब हो चुका है। विदेश में बैठे लोग, कौन वो लोग थे जो आम आदमी पार्टी को पैसा दे रहे थे? विदेश में बैठे लोग क्यों दे रहे थे आम आदमी पार्टी को पैसा? दुबई में कोई बैठा इंसान आम आदमी पार्टी को क्यों पैसा देगा? कनाडा, अमेरिका से बैठे जो लोग पैसे दे रहे थे, उनकी क्या मंशा थी, क्या भावना थी? आम आदमी पार्टी ने कभी देश को नहीं बताया उनके पास कितने करोड़ रुपए आए हैं। आम आदमी पार्टी देश विरोधी पार्टी है। जैसे कांग्रेस ने चीन से पैसे लिए थे, इसी तरह आम आदमी पार्टी की क्या मंशा थी, भारत को क्या नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और जिन लोगों ने पैसा भेजा उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उन्होंने क्यों ये पैसा भेजा और उनके पीछे ये पैसा कहां से आया था, ये सवालों के अब आम आदमी पार्टी को जवाब देने चाहिए। Well, it's not only been in violation of FCRA Act, it is in violation of the RP Act, Representative People's Act also, because you can't receive foreign funding without the knowledge of the Government of India. There were always a doubt on the subject, and there are a lot of questions being raised since the Khalistani head of the Khalistani forces has said they have funded the Aam Aadmi Party. Now it's becoming clear. They have rerouted the money of the Khalistani funds which were given to them by the people who were supporters of Khalistan. Question is of the national security. Raghav Chadha was in UK. He met Preet Kaur Gill, the known Khalistani supporter, the lady who supports, she's a member of parliament, but she supports the Khalistan cause from UK. तो हमारे साथ शिवानी और तेजश्री दोनों जुड़ रही हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। शिवानी, ये सवाल जो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिरकार ये पैसा किसने भेजा, कहां से भेजा, कितना भेजा और आखिरकार क्यों भेजा, ये बड़े सवाल अभी आते हुए और उठते हुए नजर आ रहे हैं। अमिता, देखिए, सवाल दर सवाल जैसे जैसे अलग अलग इस तरह के घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और तेजी से गाती जा रही है। सवाल यह है कि एक नहीं, तमाम तरह के जो एक्ट्स हैं उनको वायलेट किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। न सिर्फ फॉरेन से इन्होंने इलीगली फंड्स लिए, बल्कि जिन लोगों से ये फंड्स लिए उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, गलत तरीके से पैसे को अपने पर्सनल अकाउंट्स में जो एमएलए हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने साइफन ऑफ किया। तमाम और जो लोग हैं पार्टी के, उनके अकाउंट्स में ये पैसा गया। तो आखिर ये पैसा क्यों लिया गया, किससे लिया गया, किस आधार पर लिया गया, इसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने किस तरह से किया, ये तमाम सवाल हैं। और टाइम्स नाउ
हर बार जब इन घोटालों को खोलता है तो इसी तरह से ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और इस बार भी ये हो रहा है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और आपको याद होगा अमिता, जब यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा था तब खालिस्तानी झंडे दिखाई दिए थे, और आम आदमी पार्टी का उनके साथ क्या कनेक्शन है, ये भी, इस पर भी सवाल उठे थे। तो ये जो फंडिंग हुई है खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, तमाम उन देशों से जहां पर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट होते हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जो भारत के खिलाफ हैं, खालिस्तान की मांग करते हैं, उन लोगों के साथ क्या आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन है? इस तरह के बड़े सवाल उठ रहे हैं। एंड दिस पर्टिकुलर expose that has been done by Times now once again, it's making Aam Aadmi Party very uncomfortable, and serious allegations and questions are rising now against Aam Aadmi Party, and they have to clarify and break their silence on the same. जी, क्योंकि तेजश्री, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले वो षड्यंत्र का नाम लेते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि कंस्पिरेसी की गई है। अभी भी कहा जा रहा है कि ये पुराना केस है, वो सारे जो अकाउंट्स की जितनी डिटेल्स है वो इनकम टैक्स और ईसीआई को पहले से ही सौंप चुके हैं, और जानबूझ के पुराने केसेस को निकाला जा रहा है ताकि उन्हें टारगेट किया जाए। लेकिन अभी भी इस मुद्दे के ऊपर सीधा जवाब आता हुआ कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तेजश्री, हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है 2022 से शुरू होता है, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय ने जब एक चिट्ठी लिखी और बताया गया कि किस तरह से विदेशी फंडिंग आम आदमी पार्टी को प्राप्त हो रही है, और उसके बाद इस मामले को आगे ले जाया गया, और उसके बाद इसकी पूरी जो विस्तृत जानकारी थी वो गृह मंत्रालय को सौंपी गई कि किस तरह से इसमें अनिश्चितताएं पाई गई हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चूंकि मामला पुराना है इसे अब क्यों उठाया जा रहा है, तो मामला इसीलिए उठाया जा रहा है कि साल 2014 से लेकर साल 2022 तक आम आदमी पार्टी को ऐसा ईडी के मुताबिक जो उन्होंने पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को, उसमें ये बात साझा की गई है कि किस तरह से 2014 से लेकर 2022 तक विदेशी फंडिंग होती रही। और अब इस पर आम आदमी पार्टी ने कल एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उनकी मंत्री आतिशी और संदीप पाठक, इन दोनों ने इस बात को कहा कि ये एक षड्यंत्र है, और अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से बीजेपी ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। हालांकि देखिए इस तरह के बयान जो है आम आदमी पार्टी के पहली बार नहीं है कि हमें देखने को मिले हैं। अन्य कई बार भी जब इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं तब भी आम आदमी पार्टी यही आरोप लगाती आ रही है कि एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी द्वारा उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का रुख यहाँ पर साफ है कि किस तरह से और क्यों यहाँ पर विदेशी फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए जहां तक एमएचए को ये चिट्ठी लिखी गई है ईडी की तरफ से, एंड दिस इज द बीजेपी रेजिंग क्वेश्चंस, द आम आदमी पार्टी मीनवाइल denying all of those allegations, dismissing them, saying that this is yet another attempt to target and to finish off the party. Tejshri and Shivani, thank you very much for joining in.